Hello everyone, welcome to all of you. This is my first video related to class 11 entrepreneurship subject. The student, in the previous video or in the previous videos, we have learned about the various topic related to chapter number 1. The student, in the chapter number 1, we have learned about the concept of entrepreneurship, entrepreneur, enterprise, and the various functions of an entrepreneur. We have learned in the previous chapter. We have learned about the various advantages, disadvantages of an entrepreneurship, advantages and disadvantages of an entrepreneurship, and the various myths related to entrepreneurship. We have learned about the various we have learned about the process of entrepreneurship in the previous videos. Now student, we are moving our next chapter, that is chapter number 2, an entrepreneur. We will learn about the entrepreneur. Students, now you are familiar with word entrepreneur. Who is an entrepreneur? The person who take initiative, who start an organization, is called entrepreneur. In this chapter, we will learn the following topics. We will learn the various topics related this chapter. First one is various type of entrepreneurs, competencies of an entrepreneur, meaning of ethical entrepreneurship, importance of ethical entrepreneurship, value of ethics of an entrepreneur, values, attitude, and motivation required by an entrepreneur, and the differentiation between entrepreneur and employee, and the meaning and importance of entrepreneurship in any organization. So student, we will learn all these topics. Before starting in my first video, I have told you that some portion of each and every chapter has been reduced by CBSE this year due to the COVID pandemic. But student, in this chapter, there is no reduction. There is no deduction of any topic. So we learn all the topics of this chapter. So student, there is no deleted portion this year in this chapter. So we will learn all the topics related to this chapter. Now student, we are moving further on this chapter. Here a case study given, case study of Steve Jobs and Apple. Is a case study given how Steve Jobs start this company. So you must read this case study. Now student, we are moving the various types of entrepreneurs. Here I am reading, entrepreneurs can be of different types. Some may prefer to go it alone or share the risk in group with others. They are found in every economic system and every form of economic activity, as well as in other social and cultural activities. They are seen from among us: farmers, laborers, fishermen, tribes, artisans, artists, importers, exporters, bankers, professionals, politicians, bureaucrats, and so many others. Based on the above features, C. Denhoff has broadly classified entrepreneurs into four parts. These are discussed below. So स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो entrepreneurs है, जो सी डेनहॉफ ने बताए हैं, तो उसके बेसिस पे हम एंटरप्रेन्योर, जो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में. फर्स्ट, देर आर फोर टाइप जो उन्होंने बताए. फर्स्ट वन इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, सेकेंड वन इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, थर्ड वन इज Fabian entrepreneur, and the fourth one is drawn entrepreneur. So first of all, we will learn about these type of entrepreneur. So ये explain किसने describe किए हैं types of entrepreneur? C. Denhoff. Is it clear? So first one is innovative entrepreneur. नाम क्या है? Innovative.
दैट मीन्स वो पर्सन जो बिल्कुल न्यू थिंग लेके आता है मार्केट में, न्यू बिजनेस या न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस लेके आता है मार्केट में, उससे पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा सर्विस किसी भी बिजनेसमैन ने, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने मार्केट में नहीं लेके आया है। हम एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट टाइम किसी एंटरप्रेन्योर ने एलसीडी टीवी बनाया होगा, फर्स्ट टाइम किसी ने कलर टीवी बनाया होगा, एलईडी टीवी है, उसके अलावा हम बात करें वॉशिंग मशीन, उसके बाद में प्रिंटर, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट में न्यू आता है या एंटरप्रेन्योर बिल्कुल न्यू चीज लेके आ रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन, तो दैट इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दैट मीन्स उसने किसी का कॉपी नहीं किया है बिजनेस, उसने फ्रेश, उसने खुद ने रिसर्च डेवलपमेंट करके, उसने न्यू आइडियाज जनरेट करके वो बिजनेस वो मार्केट में लेके आया है। The clear? In the early phase of economic development, entrepreneurs have initiative to start new venture and find innovative ways to start an enterprise. Thus, innovative entrepreneurs are those who introduce new products, new method of production, techniques, or discover a new market or new service or recognizes the enterprise. Is it clear? तो that means वो सर्विस होगी, न्यू होगी, जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम किसी ने ओला कैब, उबर कैब स्टार्ट की होगी कि ऐसा कि प्रायर पेमेंट, प्रायर डेस्टिनेशन हम बुक कर सकते हैं और उसका पेमेंट भी प्रायर कर सकते हैं, हमें आइडिया भी हो जाएगा जो फेयर वगैरह का है। देन आफ्टर हमारी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो भी हमें अवेलेबल हो जाएगी। किसी ने फर्स्ट टाइम होम डिलीवरी ऑप्शन स्टार्ट किया होगा। तो दैट मीन्स यदि कोई एंटरप्रेन्योर यदि इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करता है जो बिल्कुल न्यू है, ऐसा मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं है, तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? दैट इज फॉल इन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इज इट क्लियर? It is the innovative entrepreneur who build a modern capitalism. They are commonly found in developed countries. They are aggressive in nature. एग्रेसिव होंगे तभी तो वो डिसीजन लेंगे। यदि एग्रेसिव नहीं है नेचर तो सोचेंगे जो चल रहा है मार्केट में चलने दो ना, हम क्यों एफर्ट लगाएं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, और एग्जाम्पल ये बुक में गिवन है, आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, वो भी आप एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, वॉल्ट डिज्नी हु स्टार्टेड ह्यूज थीम पार्क सच एज डिज्नीलैंड। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स किसी के माइंड में तो एक ऐसा आइडिया आया, वॉल्ट डिज्नी के माइंड में आइडिया आया क्या कि हम ऐसा कोई थीम पार्क स्टार्ट करते हैं जहाँ पे बहुत सारी राइड्स है, बहुत सारे फन गेम्स हैं, ताकि उसे एंजॉय करे और चार्जेबल भी है। तो वो उस बेसिस पे उनको क्या कर रहा है, जो प्रॉफिट है अर्न कर रहा है। तो दैट मीन्स समथिंग न्यू। इज इट क्लियर? इन दैट इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये किसने बताया है? टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, सी डैनहॉफ ने। Second one is imitative entrepreneurs. That means इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, मार्केट में न्यू लेके आते हैं थिंग्स को। लेकिन आप देखते होंगे जैसे अपन बोलते हैं कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो दैट मीन्स हम जैसा न्यू मार्केट में लेके आते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, उनको कॉपी कर लेते हैं, उनको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, वो उस बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए एलजी है, वो टीवी लेके आया एलसीडी की, वैसा का वैसा सैमसंग ने बना दिया, ओनिडा ने बना दिया, तो दे आर ऑल इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इज इट क्लियर? तो देयर इज अ सेकंड ग्रुप generally referred as imitative entrepreneurs. They usually copy or adopt suitable innovation made by innovative entrepreneurs. Is it clear? तो उन्होंने क्या किया है, जस्ट कॉपी किया है उस बिजनेस को जो जो बिजनेस इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिएट किया है, इन्होंने उस बिजनेस को कॉपी किया है। दे आर अडेप्टिव एंड मोर फ्लेक्सिबल। दे आर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन क्रिएटर्स। दैट मीन्स वो ये नहीं कि हम डिसाइड कर रहे हैं इसके लिए न्यू मशीन कौन सी चाहिए, क्या है क्या नहीं, उन्हें सब चीजें पता है ऑलरेडी, क्योंकि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मशीन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये मटेरियल चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और विद द अरेंजमेंट वो क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं।
The imitative entrepreneurs are always also revolutionary and important. They contribute to the development of underdeveloped countries. अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है हमारे लिए? बिकॉज यदि एक किसी ऑन्टरप्रनोर ने कुछ न्यू इनोवेटिव स्टार्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं कि उसे ऑल स्टेट, ऑल कंट्री, वो ऑल वर्ल्ड जो है वो एक पर्सन कवर कर लेगा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल थिंग है. तो जो इमीडिएट जो एंटरप्रेन्योर्स है वो उन बिजनेसेस को कॉपी करते हैं, एंड देन आफ्टर दे विल आल्सो सप्लाई these product into market. Is it clear? That they contribute to the development of underdeveloped economies. Example, the local mobile companies using the same technology as big companies to manufacture their products. Is it clear? Next one is Fabian entrepreneurs. Next one is Fabian entrepreneurs. So basically, this is third type of entrepreneurs. First one is innovative, second one is imitative, and the third one is Fabian entrepreneurs. Fabian entrepreneurs basically वो entrepreneurs होते हैं जो एक तरीके से कहें सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है. जैसे कि सपोज कीजिए किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, सपोज कीजिए किसी के ग्रैंडफादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, फादर उस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, तो फादर है वो सेम टू सेम बिजनेस उस बिजनेस लेगेसी को कंटिन्यू फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही सिमिलर प्रोडक्ट, वही सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई वेरिएशन तब तक नहीं लाएंगे उस अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कि अब हमें चेंजेस लाने जरूरी है, अदरवाइज हम बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हमें बिजनेस फेलियर हो जाएंगे कि चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तब तक वो कोई न्यू स्टेप नहीं लेंगे बिजनेस के लिए. तो दैट आर Fabian entrepreneurs. The third type are Fabian entrepreneurs. Such entrepreneurs are very shy and lazy. They are very cautious. They do not venture or take risk. They are rigid and fundamental in their view approach. Usually they are second generation entrepreneurs in a family enterprise. What is second generation entrepreneurs? ये हम जो लास्ट टाइप ऑफ entrepreneur पढ़ेंगे वहां पे भी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. दैट इज यहाँ पे सिंपली बता देती हूँ, यदि किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और उसी के जो सन या उसी के फैमिली मेंबर्स उस बिजनेस को आगे कैरी कर रहे हैं, तो दैट इज सेकंड जनरेशन. थर्ड जनरेशन बिजनेस सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो जो धीरू भाई अंबानी है उन्होंने स्टार्ट किया, तो दे आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. ऑल्टिक्स जो उन्होंने रिस्क है उन्होंने लिए, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर में मुकेश अंबानी कवर होंगे, थर्ड में अनंत अंबानी एंड सो वो कवर होंगे. तो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? शाई एंड लेजी होते हैं. दे आर वेरी कॉशियस, दे डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क. वो ऑन गोइंग जो उनको बिजनेस मिला है वो उसी को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं. बट दे जो उनकी मेन बात है वो है दे डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते. दैट मीन्स यदि उन्हें लगेगा कि हाँ अब हमने चेंजेस नहीं किए हैं और अब हमें लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन. लेकिन जब तक उन्हें ये फील नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा, तो दे डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ एक्शन. इज इट क्लियर? So the third type are the Fabian entrepreneurs. Such entrepreneurs are very shy and lazy. They are very cautious. They do not venture or take risks. They are rigid and fundamental in their approach. Usually, they are second generation entrepreneur in a family business. They follow the footsteps of their predecessors. They imitate only when they are sure that failure to do so would result in a loss of the relative position in the एंटरप्राइज. इज इट क्लियर? तो तभी वो स्टेप लेना पसंद करेंगे जब उन्हें लगेगा कि हमने हमने यदि ऐसा नहीं किया है तो हमें क्या हो जाएंगे? लॉसेस हो जाएंगे. इज इट क्लियर? लास्ट वन इज ड्रॉन एंटरप्रेन्योर. इज इट क्लियर? ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स. फर्स्ट वन हमने देखा था इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स. सो दैट मीन्स दे टेक ऑल रिस्क, दे ट्राई something for new, or they can bring new things, new product, new service in the market. And the second one is imitative entrepreneurs. They copy the product or services that are provided by innovative entrepreneurs. The third one is Fabian entrepreneurs, and the last one is drawn entrepreneurs. Suppose कीजिए
किसी पर्सन ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, सपोज कीजिए किसी ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया है, ग्रैंडफादर के बाद में उसी बिजनेस को फादर कर रहा है, उसी बिजनेस को फादर के बाद में सन कर रहा है, सन के बाद में उसका जो सन है वो भी उसी बिजनेस को ऑपरेट करेगा। यदि उनको लॉसेस भी हो रहे हैं तो भी वो बिजनेस में वेरिएशन चेंजेस नहीं लेके आएंगे। मतलब वो सिंपली मीनिंग है, जैसा हमें बिजनेस मिला है हम उसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, हम हमारे बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। और फैबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या है, जैसा हमको बिजनेस मिला है हम वैसा बिजनेस ऑपरेट करेंगे, लेकिन यदि हमें लगता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट है या हमें लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अपने बिजनेस में चेंजेस लेके आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो द ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स, तो जो सक्सेस रेट होती है इनकी तो वो भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। द फोर्थ टाइप इज ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स हु रिफ्यूजेस टू कॉपी और यूज अपॉर्चुनिटीज दैट कम देयर वे। They are conventional in their approach, they are not ready to make changes in their existing production method even if they suffer losses, they resist changes, they may be termed as laggards. Is it clear? So these are the four type of entrepreneurs which are described by C. Denhoff. Is it clear? So basically in this chapter we will learn about the various type of entrepreneurs available in our country, found in our country. So first one is described by C. Denhoff. C. Denhoff. Is it clear? Now student, we are moving the second type. Second type of entrepreneurs, that is, it is based on business. Here we learn about the various type of entrepreneurs, total 8 entrepreneurs, according to the business they operate. Is it clear? जैसा हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम entrepreneurs को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. Is it clear? Depending on the nature, size and type of business, entrepreneurs are divided five into five categories. First one is business entrepreneurs. That means जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आइडिया लेके आ रहे हैं न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और उनको जो आइडिया है उसको ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली दे आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. इज इट क्लियर? So first one is business enterprise are those who developed an idea for a new product or service and then establish an enterprise to materialize their idea into reality. Most of the entrepreneurs belong to this category because majority of entrepreneurs are found in the field of small trading or manufacturing concern. Is it clear? तो बेसिकली यदि जो न्यू आइडिया लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड, और जो उन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. इज इट क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रेड. That means buying and selling of goods and services. That means यदि हम उन गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम किसी से उन गुड्स को परचेज कर रहे हैं, और आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट मार्जिन देन आफ्टर वी विल सेल टू रिटेलर्स और कंज्यूमर्स. इज इट क्लियर? तो बेसिकली वी बाय प्रोडक्ट्स from manufacturer or from wholesaler and then we sell it to the retailer or consumer. So basically trading entrepreneurs are include these. Entrepreneurs who undertake trading activities whether domestic or overseas are trading entrepreneurs. That means वो buy करना, goods को sale करना, या तो इंडिया में कर रहे हैं या outside of India, so they must be considered into trading entrepreneurs. They have to identify the potential market for his product in order to stimulate the demand of the same. They push many ideas ahead of others in the form of demonstration to promote their
businesses. Simply meaning है they have to identify, यदि उनका जो मेन बिजनेस क्या है, जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल करना, तो डेफिनेटली वो अपना मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे. यदि मार्केट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो जिस प्रोडक्ट को सेल करना है तो वो उसको सेल नहीं कर पाएंगे, उतनी एक्सपेक्टेड सेल अराइज नहीं होगी. They push many ideas and ahead of others in the form of demonstration and to promote their business. Is it clear? First one is business entrepreneur, second one is trading entrepreneur, and the third one is industrial entrepreneur. Who is an industrial entrepreneur? Basically the person who is directly or indirectly related to the manufacturing. दो जनरली हम देखेंगे कि जो बिजनेस होते हैं दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, दैट मीन्स हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उस पर फर्दर प्रोसेस करते हैं एंड देन आफ्टर उस गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर वी विल सेल दैट प्रोडक्ट. फर्स्ट थिंग तो ये होती है. और सेकेंड है कि हम फिनिश गुड्स को परचेज करते हैं कम प्राइसेस में एंड देन आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट मार्जिन वी विल सेल इट टू अनदर. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं, जो गुड्स को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स essentially manufacture products and offer services which have an effective demand in the market. They have the ability to convert economic resources and technology into a profitable venture. For example, enterprises like Hero MotoCorp, Hyundai Corporation और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं, जो बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है. इज इट क्लियर? तो थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स कौन है? Corporate entrepreneur are those who through their innovative ideas and skill able to organize, manage and control a corporate undertaking very effectively and efficiently. Usually they are the promoters of the undertaking, corporation engaged in business, trade or industry. तो बेसिकली हम देखेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज एंड स्किल्स डेवलप करते हैं और उनके बेसिस पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं एंड देन आफ्टर वो धीरे 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 अपने बिजनेस को क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और उस बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन वेरी लार्ज स्केल पे होता है. तो दे आर कंसिडर्ड इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स. तो जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है, तो बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. यदि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर रहा है तो बेसिकली वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर में कंसिडर होगा. एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स आर दोज who undertaking agriculture as well as allied activities in the field of agriculture. They engage in raising and marketing of crops, fertilizers and other inputs of agriculture through employment of modern techniques, machines and irrigation. That means वो directly और indirectly जो भी business है जो agriculture को support करते हैं तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स में कंसीडर होते हैं. सेकेंड वन, नेक्स्ट हम बात करें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड किया गया है. तो हम देखेंगे यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल एंटरप्रेन्योर एंड द सेकंड वन इज नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए एक पर्सन है, उसने ग्रेजुएशन करी है, देन आफ्टर ही विल डू he have done engineering, that means उसने उस टेक्निकल स्किल्स एक्वायर की है एंड देन आफ्टर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है. सपोज कीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जिसे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो वो बेसिकली टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में कंसीडर होगा. So the entrepreneur who are technical by nature in the sense of having the capability of developing new and improved quality of goods and services out of their own knowledge, skill and specialization are called
technical entrepreneur. They are essentially compared to craftsmen who concentrate more on production than marketing. Is it clear? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बिजनेस के बेसिस पे जो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है बहुत इजी हैं, जो उनके नाम है उससे क्लियर हो रहा है कि बेसिकली ये किस फील्ड को, किस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं. तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कौन है? वो पर्सन है जो that entrepreneurs who are technical by nature in the sense of having the capability of developing new and improved quality of goods and services out of their own knowledge, skill and specialization are called technical entrepreneurs. Is it clear? अब जस्ट हम अपो नेक्स्ट बात करें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे. यदि फर्स्ट वन है टेक्निकल, तो सेकंड वन क्या होगा? नॉन टेक्निकल. इज इट क्लियर? नॉन टेक्निकल तो बेसिकली इन्हें टेक्निकली नॉलेज नहीं होगी, तो देखेंगे कि जो उनका बिजनेस होगा ना वो भी टेक्निकल नेचर का नहीं होगा. या तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे, जहां पे टेक्निकल नॉलेज कम रिक्वायर्ड है, तो वो उस बिजनेस से बिलोंग कर रहे होते हैं. तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु आर मेनली कंसर्न with developing alternative marketing and distribution strategies to promote their business. They are not concerned with the technical aspect of the products and services they are dealing with it. Is it clear? तो जब उनके पास में टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, तो वो टेक्निकल प्रोडक्ट प्रोवाइड भी नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में बहुत सारे नॉन टेक्निकल बिजनेसेस होते हैं, तो बेसिकली वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स. प्रोफेशनल नाम से क्लियर है, दैट मीन्स एक पर्सन जिसने पहले बहुत एफर्ट करके एक प्रोफेशनल डिग्री को एक्वायर किया है और देन आफ्टर उस प्रोफेशनल डिग्री को यूज करके वो कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स मेक इट their profession to establish business enterprise with a purpose to sell them once they are established. She always looking forward to develop alternative project by selling and running business. She is not interested in managing operation of the business established by him. She is very dynamic. That means मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल लूँ. तो यदि उसने चार्टेड अकाउंटेंट है, उसकी डिग्री एक्वायर की है, देन आफ्टर वो उससे सर्विसेज, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. डॉक्टर की बात करें तो हम बात करें, डॉक्टर ने एक डिग्री एक्वायर की है, देन आफ्टर ही विल प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ही विल चार्ज फी फॉर दैट सर्विस. तो बेसिकली उनका काम क्या है? अपने प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग, प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग बिजनेस को ऑपरेट करना, और जो मेन काम उनका वो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है. बिजनेस को ऑपरेट करना उनका मेन काम नहीं होता है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर के बारे में स्टडी किया है. नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन. अब जैसे कि हमने देखा था, बाय द नेचर ऑफ technicality, entrepreneurs are divided into two parts, technical and non-technical. In the same way, according to the motivation, entrepreneurs are divided into three parts. Entrepreneurs are divided into three parts. First one is spontaneous entrepreneurs. Who are spontaneous? Spontaneous entrepreneurs are otherwise known as pure entrepreneurs, who are motivated by their desire for self-fulfillment and to achieve or prove their excellence in job performance. They undertake entrepreneurial activities for their personal satisfaction in work, ego, status. Their strength lies in their creative abilities. They are the natural entrepreneurs in any society. They do not need any external motivation. That means spontaneous entrepreneurs वो entrepreneurs है जिनमें मोटिवेटेड है. जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक डिग्री एक्वायर की है
और अब मुझे उस डिग्री के अकॉर्डिंग वर्क करना है, या सपोज कीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने डिसाइड कर लिया है, अपना माइंड सेट कर लिया है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है या इस टारगेट पे अपने बिजनेस को पहुंचाना है, तो मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मोटिवेशन के लिए। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं मेरी स्ट्रेंथ के बेसिस पे वर्क कर रही हूँ, और मैं तब तक वर्क करती रहूंगी जब तक मैंने वो जो टारगेट डिसाइड किया है वो टारगेट अचीव नहीं कर लेती। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स भी बहुत कैटेगरी के होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल उनको किसी को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, उनका टारगेट है कि हाँ इतनी परसेंटेज लेके आना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं पढ़ते भी हैं, लेकिन हाँ जब तक उनको कोई मोटिवेट नहीं करता वो नहीं पढ़ रहे होते हैं, नहीं लर्न कर रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बार बार रिपीटेटिवली बताना पड़ता है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स है, जो उनकी जो मेन होता है, हु आर मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड टू अचीव और प्रूव देयर एक्सीलेंस इन जॉब परफॉर्मेंस। मतलब जो भी काम कर रहे हैं, हाँ वो उस काम को बेस्ट करेंगे। यदि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो उन्होंने टारगेट सेल किया, सेटअप किया है, वो उस टारगेट तक अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे है फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स, दैट मीन्स वो हाईली सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें कोई एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डेफिनेटली जब तक वर्क करते रहेंगे जब तक जो उन्होंने टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट तक नहीं पहुंचते। नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो पर्सन है जो बिजनेस तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है हमें किस फील्ड में स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो जो बहुत सारे अभी आप जैसे आप अभी जस्ट आप एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है उसमें एंटर हुए हैं, आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करती है। किसी केसेस में सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, किसी केसेस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। किसी एरिया में हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें वेरियस एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करती है, रिबेट प्रोवाइड करती है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर में जो हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स, तो बेसिकली वो पर्सन है जो गवर्नमेंट कि कोई गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए कोई स्कीम स्टार्ट की है, कोई इनिशिएटिव, कोई इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट कि ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इतने रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, या इतने 1 ईयर 2 ईयर तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। उन स्कीम्स के कारण उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दैट आर कंसिडर्ड इनटू इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। इज इट क्लियर? So induced entrepreneurs entered into the entrepreneurship because of various governmental supports provided in terms of financial assistance, incentives, concession, and other facilities to the people who want to set up their new enterprise. Is it clear? तो दैट मीन्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि या तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए, दैट मीन्स फाइनेंशियल हेल्प, इंसेंटिव्स दैट मीन्स कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किए, कंसेशन दैट मीन्स एक्चुअल में सपोज कीजिए लैंड की रेट वहां पे हाई है लेकिन गवर्नमेंट ने वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहां पे लो रेट चार्ज किए, एंड अदर फैसिलिटी टू द पीपल who want to set up their new enterprise. Sometimes prospective entrepreneurs are induced or even forced by their special circumstances. कुछ टाइम तो हम खुद करना चाहते हैं ऐसे बिजनेसेस को, और कुछ टाइम पे हमारी सर्कमस्टेंसेस हो जाती है, जस्ट लाइक लॉस ऑफ जॉब और इनेबिलिटी टू फाइंड ए सुटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड मेरिट टू अडेप्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? तो ये कौन से हैं? इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट वन इज मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स कौन है? Motivated entrepreneurs are motivated by their desire to make use of their technical and professional expertise and skill in performing the job or project they have taken up. That means उन्होंने पहले टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एक्वायर की है और वो उसी के अंदर क्या कर रहे हैं, जॉब और प्रोजेक्ट दे हैव उस वर्क को करने में, कंप्लीशन करने में लगे हुए हैं। दे हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो उस काम को क्या है कंप्लीट कर लेंगे। दे आर हाईली एम्बिशियस एंड आर नॉर्मली नॉट सेटिस्फाइड विद द स्लो प्रोग्रेस इन देयर जॉब।
They enter entrepreneurship because the possibility of making and marketing of some new product and service for the use of prospective consumer. जो एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग ऑफ some new product or service or for use of the prospective consumers. If the product or services is developed for a saleable stage and the customer accept the same, the entrepreneur is then further motivated by rewards in the terms of profit. तो बेसिकली हम जो यहाँ पे देख रहे हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, तो दे enter entrepreneurship because of the possibility of making and marketing of some new product or services for the use of prospective consumers. That means जो बेसिकली उनका एंटरप्रेन्योरशिप में आने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि जो न्यू प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करना इस तरीके से कि जो कंज्यूमर्स है उनको लेने के लिए इजीली रेडी हो जाए. तो स्टूडेंट आप जब इसको रीड करेंगे ना, तो आपको दो जो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है उनमें कंफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी है वो क्रिएट हो सकती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्पॉन्टेनियस और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स पहले उन्होंने टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एक्वायर की होती है उस फील्ड में. दैट मीन्स टेक्निकल और प्रोफेशनल कोई डेफिनेटली स्किल एक्वायर किए, देन आफ्टर दे विल स्टार्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस. इज इट क्लियर? और वहां पे एक नॉर्मल पर्सन है, स्टार्ट कर रहा है, दोनों मोटिवेटेड है. एक पर्सन जॉब के लिए है मोटिवेटेड और तब तक वर्क करता रहता है जब तक वो टारगेट अचीव ना कर ले. और यहाँ पे उसको अपनी डिग्री, उसकी नॉलेज, उस पर कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स को. और वो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर से रिलेटेड वर्क करता है मोटिवेटेड, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड करता है. तो बेसिकली ये मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए वर्क करते हैं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज. वो बेसिकली टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नेचर से रिलेटेड हो सकती है. और यहाँ पे हम बात करें इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स की, तो ये हो सकता है एग्जिस्टिंग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस उन्होंने कॉपी किया है, उसमें आप एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं. तो ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस की हम बात करें तो हो सकता है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है. दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है. मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट बार उनके पास फर्स्ट थिंग है कि उनके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल्स होंगी, और उसके अलावा सेकेंड थिंग है वो न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में, या जो न्यू प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए एफर्ट करेंगे. तो ये बेसिकली दो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स है, उनमें डिफरेंस है. अदरवाइज बोथ ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे उन दोनों में सिमिलर है. If the product or service is developed to a saleable stage and the customer accept the same, the entrepreneur is then further motivated by reward in terms of profit. Is it clear? तो हमने यहाँ पे जो मोटिवेशन के बेसिस है उस पे एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा था. तो यहाँ पे 3 टाइप जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया. फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस, सेकंड वन इज इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, एंड द थर्ड वन इज मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स. इज इट क्लियर? So student, now we are moving the fourth type of categories of entrepreneurs, that is it is based on the जनरेशन के बेसिस पे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. फॉर यहाँ पे हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द जनरेशन बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. इज इट क्लियर? हु इज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स? फर्स्ट दैट मीन्स जिन्होंने बहुत एफर्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. दैट मीन्स दे आर द बिगनर ऑफ दैट बिजनेस. उन्होंने अपने इनोवेटिव स्किल, टैलेंट को यूज किया, एंड देन आफ्टर दे हैव एस्टैब्लिश दैट बिजनेस. इज इट क्लियर?
So these enterprises, these entrepreneurs start their industrial unit by means of their own innovative skills and expertise. They usually combine different technologies to produce marketable products or services to the consumer. They are essentially innovators having no entrepreneurial background. That means वो अपनी फैमिली में से फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है उन्हें, और ऐसा नहीं कि उनको हेरिडिटी में ऐसा बिजनेस मिला है, उन्होंने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है. उसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी है, तो दैट इज दे आर फर्स्ट जनरेशन, ही इज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. तो दैट उन्होंने अपनी इनोवेटिव स्किल्स को यूज किया है, एक्सपर्टीज को यूज किया है, और उससे पहले उनकी फैमिली में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं था. तो these entrepreneurs start their industrial unit by means of their own innovative skills and expertise. They usually combine different technologies to produce marketable products or services for the consumers. They are essentially innovators having no entrepreneurial background. Is it clear? So this is first generation entrepreneur. Next one is inherited entrepreneurs or second generation entrepreneur. जैसे एक फादर, ग्रैंडफादर का बिजनेस फादर ने ज्वाइन कर लिया है, तो दैट इज सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. और फादर का, ग्रैंडफादर का बिजनेस फादर ने ज्वाइन कर लिया है, और फादर के बिजनेस को उसके बाद में उसके सन ने ज्वाइन कर लिया है, तो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे inherited entrepreneurs or entrepreneurs by inheritance are seen in India, where they inherit the family business through the succession and pass it from one generation to another. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल दिया था, वो फर्स्ट जनरेशन में फॉल करेंगे. मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल है तो वो सेकंड जनरेशन में फॉल करेंगे. तो इनहेरिटेड entrepreneurs are entrepreneurs by inheritance are seen in India, where they inherit the family business through succession and pass it from one generation to another. Is it clear? Next one is third generation entrepreneurs. These are those type of entrepreneurs wherein their grandparents and parents have been entrepreneurs and they have inherited the business. This model is very commonly found in India. Is it clear? तो यहाँ पे जो हम बात करें बेसिकली, तो हम देख रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर है उसी के बिजनेस को ऑपरेट किया है सन ने, फादर ने ऑपरेट किया है, उसी बिजनेस को कंटिन्यू किया है, उसके बाद में उसके सन ने उसको बिजनेस को किया है. ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, आप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तब भी आप देखेंगे कि जो इनहेरिटेड बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा होता है. तो यहाँ पे हम उसी टाइप के एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं. फर्स्ट जनरेशन, दैट मींस कंप्लीटली दे स्टार्ट न्यू बिजनेस विद देयर इनोवेटिव स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर्स सेकंड जनरेशन में क्या है, वो उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं. और थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टैब्लिश किया है बिजनेस को, वो उसी बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल, उसी बिजनेस को वो एक्सपैंड कर रहे हैं. तो बेसिकली दे आर कवर्ड इनटू थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. इज इट क्लियर? Student, first of all, we recall the type of entrepreneurs we have studied in this video. First one, type of entrepreneurs according to the Siedenhoff. Siedenhoff divide the entrepreneurs into the four category. First one is innovative entrepreneur, second one is imitative entrepreneur, the third one is Fabian entrepreneur, and the fourth one is drawn entrepreneur. Is it clear? Next, according to the business, according to the type of business, entrepreneurs are divided into various categories. First one is business entrepreneur, second one is trading entrepreneur, third one is industrial entrepreneur, fourth one is corporate entrepreneur, fifth one is agriculture entrepreneur. Is it clear? And according to the technology, entrepreneurs are further divided into two parts. First one is technical entrepreneur, second one is non-technical entrepreneur, and the next one is entrepreneur is professional
entrepreneur. Is it clear? And the next topic is entrepreneurs are divided according to the type of entrepreneurs according to the motivation, in which first is spontaneous entrepreneur, second one is induced entrepreneur, and the third one is motivated entrepreneur. Is it clear, student? Now the last type of entrepreneur is based on generation. First is first generation entrepreneur, the second generation entrepreneur, and the third generation entrepreneur. Is it clear? So student, this my video is completed here, and the work related to this video is prepare your notes that was highlighted by me in yellow color, and learn all the type of entrepreneurs. If you have any doubt related to this, then ask me in live stream classes. Is it clear? So student, this class is over now. Is it clear?